Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we are going to start part 8 of acid, bases and salts. Students, today we shall know about washing soda. What are the chemical reactions involved in producing washing soda? In part 6, I think you could remember that how we get sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate from sodium chloride solution. From sodium bicarbonate we get washing soda. So there are 3 steps involved in producing washing soda from sodium chloride. Let us see. First of all, sodium baking soda or sodium hydrogen carbonate is produced by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride, जिसको बोलते हैं brine, with ammonia and carbon dioxide. It is already discussed in part 6. However, let us see. So we get sodium hydrogen carbonate. Now the second step, what we have to do? On heating, sodium hydrogen carbonate decomposes to form sodium carbonate. Let us see what is the reaction. Sodium bicarbonate, on heating we get sodium carbonate plus carbon dioxide plus water. This sodium carbonate is called soda ash. This is anhydrous. That is पानी नहीं है इसमें. The anhydrous sodium carbonate thus obtained is called soda ash. Now, if we dissolve this soda ash in water, soda ash means anhydrous sodium carbonate in water and recrystallize. That is, you note down this point. Recrystallize to get washing soda crystals. It is a basic salt. Note this point also. It is a basic salt. Let us see the chemical reaction. Sodium carbonate plus 10 molecules of water is equal to क्या बना? Sodium carbonate Na2CO3 dot 10 molecule of water. Washing soda. Now, certainly one question raised in your mind that what is these 10 molecules of water, whether sodium carbonate is wet, ये भिगा हुआ है या ड्राई है. लेट अस एग्जामिन ऑल दिस थिंग्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाने के पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, तब तक आप लोग देखते रहो. चलो स्टूडेंट देखते हैं. व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई? Does it make sodium carbonate wet? चलो देखता हूं क्या है. 10 molecules of water are present as water of crystallization, जो मैंने पहले अभी बताया था, in one formula unit of sodium carbonate. One formula unit of sodium carbonate. Formula unit means one molecule of sodium carbonate. इसका पूर्वित में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा for your knowledge. तो फिलहाल ये जानो, formula unit means one molecule. So one molecule of soda ash, I mean, is called washing soda, contains 10 molecules of water. Does it make sodium carbonate wet? No, it does not make sodium carbonate wet. Rather, it is pure white, dry, solid particles. I think it is clear. Now, let us discuss what is formula unit. मैंने पहले बताया था formula unit. फिलहाल ये समझ लो कि ये one molecule of the compound. तो one molecule of the compound कितनी water of crystallization है? 10 molecules of water in sodium carbonate. Okay, let us see. Let us define what is formula unit. मैंने क्या बताया था? Simplest combination of ions. The simplest combination of ions that produces an electrically neutral unit is called formula unit of the ionic compound. That is, ionic compound जो बना electrical neutral होता है क्योंकि प्लस और माइनस मिलके, that is charged ions मिलके एक simple जो electrical neutral unit बन रहा है, it is called formula unit of the ionic compound. The formula unit of ionic compound can be thought as the smallest unit of that compound. It is the equivalent of the molecule of a compound. जो पहले बताया था, it is equivalent of a molecule of the compound. खाली difference क्या है? वो ion से बनता है. That is cluster of ionic elements. Suppose एक example देने से I think it will be clear. Say sodium chloride is a ionic compound. Here sodium is positive, chlorine is negative ion. The formula unit of ammonium chloride. Let us take one more example so that it will be more easier to understand. Suppose आपने क्या लिया? Ammonium sulfate, NH4 twice SO4. It consists of
2 NH4 positive ions and one sulfate ions. It's 2 minus, that is its valence is 2. Clear? I think now it is clear. ये खाली जान के रखो, क्योंकि ये अगर फॉर योर नॉलेज, नहीं तो आप समझ में नहीं पाओगे व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट, आपको खाली इसका मेमोराइज करना पड़ेगा. सो आई हैव गिवन एन एक्सप्लेनेशन व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट. लेट मी रेज इट फर्स्ट. The students who are more interested to know ionic compounds, मैं इन लोगों को दे रहा हूँ. चलो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ. सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, Na पॉजिटिव, Cl माइनस. पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, हियर सोडियम बाइकार्बोनेट and calcium carbonate, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, magnesium sulfate, iron chloride, iron 2 chloride, iron 3 chloride, all are ionic compounds. Just for your knowledge. Let me erase it first. Here you see the ionic compound sodium chloride. Here you can notice that sodium, chlorine, sodium is positive, chlorine is negative. Again sodium is positive, chlorine is negative. sodium के साथ फिर chlorine आया. इस तरह से if you count it, you will find that a large number of ionic elements are there, or a large number of ions are there. That is sodium chloride is a cluster of ions. Means यार देखो जितनी नंबर ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयंस रहेंगे इतनी नंबर की क्लोराइड आयंस भी रहेंगे. सो इफ यू सी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, देन इट विल बी मोर क्लियर. लेट अस सी. यार देखो वन सोडियम पॉजिटिव, वन क्लोराइड नेगेटिव, दैट इज द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl. सो हियर formula unit means one molecule. Roughly you can say this is one molecule of sodium chloride. We specifically say it as a unit, formula unit of sodium chloride, to distinguish that it is a cluster of charged ions. अब आपका मन में एक कन्फ्यूजन रह गया, what is water of crystallization? Let us discuss it. Water of crystallization क्या है? Fixed number of water molecules रहेगा in one formula unit of a salt. When water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. मतलब वन मोलिक्यूल में कितनी नंबर ऑफ फिक्स्ड वाटर मोलिक्यूल्स रहेंगे, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. लेट अस सी. एग्जांपल ले लेता हूं. आप देखिए ये कॉपर सल्फेट है, इसमें कितने नंबर वाटर मोलिक्यूल से? 5 नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल से. अभी थोड़ी देर पहले व्हेन वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द वॉशिंग सोडा, इसमें कितनी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर are present as water of crystallization in one formula unit of sodium carbonate. Clear? Let us take one more example for clarity. That is, here you see calcium sulfate. It has 2 water molecules remained here as a water of crystallization. This is called gypsum. Clear? Let me erase it. Uses of washing soda. देखो sodium carbonate, that is washing soda, is used in glass, soap and paper industries. और कहाँ पे यूज हो रहा है? It is used in the manufacturing of sodium compounds such as borax. और कहाँ पे? It can be used as a cleaning agent for domestic purposes. इसीलिए बोलते हैं washing soda, धोने वाला सोडा. सॉरी, हाँ, धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला. और कौन सा है? खाने वाला सोडा. इसके पहले हमने डिस्कस कर चुका हूँ. It is used for removing permanent hardness of water. Clear? Let me erase it. 2-4 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा. Okay student, let us examine the crystals of salts really dry. ये जो आपने देखा था क्या है? जैसे कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, और कहाँ पे देखा? वॉशिंग सोडा. ये क्या है? Na2CO3.10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो ये जो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स है ये रियली ड्राई है कि नहीं, ये हमें देखना है. चलो हमें सिंपल सा एक एक्टिविटी करते हैं. वही एक्टिविटी नंबर 2.15. लेट अस सी. आपने क्या किया? फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आपने हीट किया. कहाँ पे? इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. इसके बाद आप देखोगे कि क्या देखोगे? क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग. हीट करने के बाद ये कॉपर सल्फेट की कलर क्या बन रहा है? डू यू नोटिस द ड्रॉपलेट्स
of water in the boiling tube. Where do this comes from? ये जो water droplets आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये 2-4 क्वेश्चन है। इसके बाद क्या बोल रहा है? Add 2 to 3 drops of water into the product. तो क्या होगा? आपको देखना है कि इसका जो है कॉपर कलर, जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये रिस्टोर्ड हो रहा है कि नहीं। पहले ब्लू कलर था, इसके बाद क्या हो जाएंगे? व्हाइट हो जाएंगे। लेट मी एग्जामिन वन बाय वन। लेट अस सी। सबसे पहले देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो 5 मोलिकुल्स वाटर है व्हिच इज ब्लू इन कलर, ये नोटिस करो, व्हिच इज ब्लू इन कलर, सीम टू बी ड्राई। मैंने बताया था ना कि जब हीट करोगे ये ड्राई दिखाई देंगे, बट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन इसमें क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। वाटर कहाँ जाएंगे? वो बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर ड्रॉपलेट्स में शेप में ये जमा होते रहेंगे। When we heat the crystals, they will lose water of crystallization and forms anhydrous copper sulfate, which is white in color. You note this point, which is white in color. Earlier ये था blue in color, इसके बाद white हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि ये रिस्टोर्ड होगा कि नहीं होगा। चलो इसका पहले लेट अस सी द केमिकल रिएक्शंस। When we heat hydrated copper sulfate which is blue in color, it is the symbol of heat. तो क्या बन रहा है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन रहा है, क्योंकि वाटर जो है उड़ के चला गया कहाँ पे? बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर ड्रॉपलेट्स की शेप में। तो बन गया कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, ठीक है, which will be white in color. अब जब ये जो ड्रॉपलेट्स है और जब गिरेंगे इसका ऊपर तो क्या होगा? लेट मी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज इट। So student, what I have told, when copper sulfate dot 5H2O, that is hydrated copper sulfate is heated, the symbol of heat, तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट बनेंगे और क्या बनेंगे? 5 molecules of water, ये कहाँ पे जमा हो जाएंगे? यहाँ से अलग हो जाएंगे। that is it will be an anhydrous copper sulfate, क्योंकि water will go to here, that is in the surface of the boiling tube. Let us see. जब क्या कहाँ पे जब होंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब कम्स फ्रॉम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हिच आर रिलीज्ड ड्यू टू द हीटिंग प्रोसेस। यहाँ से हीट होने के बाद ये वाटर मोलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल के आ गया। ये बन गया आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, क्योंकि वाटर निकल के चला गया। वाटर ऑन कूलिंग दिस व्हाट विल हैपन? दिस वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा? फिर से कॉपर सल्फेट को मॉइस्चर बनाएंगे और मॉइस्चर जब हो जाएंगे इसमें तो क्या होगा? ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट विल बी रिस्टोर्ड, दैट इज CuSO4 plus 5 molecules of water. Again it will be CuSO4.5H2O. I think it is clear now. Let me erase it. Students, let us know about plaster of Paris. वो कहाँ से मिल रहा है? What is the raw material? Raw material is the gypsum. On heating gypsum at 373 degree K, that is Kelvin, it loses water molecules and become calcium sulfate hemihydrate. Totally hydrated नहीं हुआ, it becomes hemihydrate, that is CuSO4 dot half molecule of water. This is called plaster of Paris. Let us see, write the chemical equations किस तरह से है? Very simple. Gypsum law पहले CuSO4.2H2O, that is इसमें क्या है? 2 molecules of water remains as water of crystallization. जब अभी हीट कर रहा हूँ 1000 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री K, तो क्या बन रहा है? देखो कैल्शियम सल्फेट CuSO4 डॉट हाफ मोलिकुलर वाटर प्लस बाकी कितना रह गया? यहाँ पे, यहाँ से हाफ यहाँ पे रह गया, बाकी 1.5 बाहर निकल गया। दैट इज जो हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर रिमेन्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CuSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O। हम इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो only half a water molecule is shown to be attached, किस लिए? as water of crystallization. It is written in this form क्योंकि 2 formula unit or 2 molecules of calcium sulfate share only 1 molecule of water. 2 formula unit of calcium sulfate कितनी molecules of water रख रहा है इसका अंदर? 1 molecule. तो एक 1 CuSO4 will hold half molecule of water. Clear? Plaster Paris क्या है? Is a white powder and on mixing with water it again changes to gypsum. एक जब इसमें पानी आ जाएंगे तो फिर से वो कहाँ बन जाएंगे? फिर से ये अपना रॉ मटेरियल्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे CuSO4
डॉट हाफ H2O इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, प्लस 1.5 मोलिकुलर वाटर लेने के बाद क्या हो गया, CaSO4 1.5 प्लस हाफ दैट इज 2H2O, दैट इज बन गया जिप्सम। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम देखेंगे इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है। चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हड्डी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करते, लगाते हो, प्लास्टर लगाते हो, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हो। दैट इज इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करता हूँ। और इट इज मेकिंग फॉर वेरियस टॉयज, फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। दीवार में भी आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के इसको पेंट किया जाता है तो स्मूथ बन जाता है। ये जो है नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों आ रहा है वहाँ पे, व्हाई वी से दैट दिस इज POP प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों, एक्चुअली द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच we make plaster of Paris, that is gypsum, वो कहाँ पे मिल रहा है, which was mainly found in Paris, इसीलिए हमने इसको POP that is plaster of Paris बोलते हैं। Why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris? Let us see. Calcium sulfate hemihydrate, that is POP, came from the fact that it is made of heating gypsum which was mainly found in Paris। ये क्वेश्चन था आपका NCERT बुक में, so I have solved it। क्लियर, लेट अस इरेज इट। तब तक आप लोग देखते रहो। ओके स्टूडेंट्स, हमें देखता हूं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, दैट इज CaOClCl, याद है, इट इज ए ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। आपको याद होगा ड्राई स्लेट लैम्प दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ये पहले वाला स्लाइड अगर देखते रहोगे तो ये जल्दी जल्दी आपका आसान हो जाएंगे आंसर करना। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन, सॉरी, नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कौन सी, सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आप देखता हूं क्या क्वेश्चन से, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अगर रिएक्शन कराओगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर की तो क्या बन जाएंगे, इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू इट्स रॉ मटेरियल जिप्सम। अभी हमने ये डिस्कस किया था, ये रिएक्शन हो जाएंगे, देखा होता है हम रिएक्शन, CaSO4 half H2O plus 1.5 molecular water is equal to CaSO4 2.2 H2O, that is it is called gypsum, that is its raw materials। clear, let me erase it। रात खुशी बोटे देखिए। ओके स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH वैल्यू इज लाइकली टू बी। अगर रेड लिटमस को ब्लू बनाता है तो सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक इन नेचर। हाल हमें पता है न्यूट्रल इज 7, इफ इट इज मोर देन 7 देन इट मस्ट बी बेसिक, सो आंसर इज 10। क्लियर, अब देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एगशेल्स। ये सॉल्यूशन रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एक शेल के साथ कर रहा है। यार एक शेल में क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, टू गिव ए गैस, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर मिल्की कौन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट भी है और उधर प्रोडक्ट साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्यूशन कंटेन्स, आप देखो सॉल्यूशन कंटेन्स क्या है, देखो हमें रिएक्शन पता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl लेके क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो व्हाट शुड बी योर आंसर, योर आंसर शुड बी HCl। लेट मी रेज इट, तब तक आप लोग देखते रहो इसको। लेट अस रीड द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 ml of a solution sodium hydroxide, that is 10 ml क्या लिया, sodium hydroxide, a base is found to be completely neutralized by 8 ml of HCl, that is acid प्लस बेस मिलके क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है न्यूट्रलाइज्ड, दैट इज 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ HCl। If you take 20 ml of the same solution of sodium hydroxide, amount of HCl solution will be
कितनी चाहिए HCl, कितनी ml चाहिए HCl टू न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन। देखो हमें जो रेशियो है, रेशियो सेम, अगर 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर पाता है 8 ml ऑफ HCl, तो 20 होगा इसका डबल, दैट इज आंसर विल बी 16। हम कैलकुलेशन दिखाते हैं 16 रेशियो ऑफ एसिड एंड बेस शुड बी सेम फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या होगा 8/10 into 20, क्लियर। Let us read one more question. Very simple question. Which one of the following types of medicines used for treating indigestion? जब an acid होगा तो कौन सी क्या यूज करोगे आप यूज करोगे antacid to neutralize the reaction of acid. Let me erase it. Okay, student, let us read the question. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. ठीक है, क्या करता है, बेकिंग सोडा डाल देते हैं फ्रेश मिल्क के अंदर। व्हाई डज इट शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क? जब बेकिंग सोडा डालेंगे तो ये थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक बेसिक हो जाता है, क्यों, फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कालाइन, थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। तो किस लिए करते हैं, दिस द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एस कार्ड? ये कार्ड बनने में क्यों देर होता है? सबसे पहले क्या करता है, जब बेकिंग सोडा डालते हैं तो इट बिकम्स एल्कालिन, और एल्कालिन होगा तो जल्दी इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, milkman shifts the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline so that it may not get sour easily। किस लिए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट, थोड़ा सा एल्कालिन बना देते हैं तो एसिडिटी का रिएक्शन करने में इसको दिक्कत होता है, तो इसको खराब नहीं हो पाता है जल्दी। सिंस दिस मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्कालिन, अगर इसको एल्कालिन बनाओगे तो एसिड जो है लैक्टिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये लेट में कार्ड फॉर्म होता है। ठीक, therefore it takes longer time to set as card. I think it is cleared. Let me erase it first.